الیکشنز کی، اور آپ کو بتائیں کہ فیصل آباد میں پاکستان علماء کونسل اور مسلم لیگ نون کی مشترکہ پریس کانفرنس سابق وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں. آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں. ان کی حمایت ہمارے لیے بڑی ویلیویبل ہے. پاکستان مسلم لیگ نون مذہبی جماعتوں، قوتوں اور خاص طور پہ علماء اکرام کا ہمیشہ احترام کیا ہے. جب جب بھی پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت رہی ہے، ہم نے اپنی بہترین کوشش کی ہے کہ علماء اکرام کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہیں وہ بہتر سے بہترین ہوں، اور ایسا رہا بھی ہے. آپ کا کام ہمارے لیے بڑے معنی رکھتا ہے، اور ہم تمام علماء اکرام کے جو یہاں پہ موجود ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. علماء کونسل کی قیادت کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ اگلے 3 روز میں علماء کونسل کے علماء اکرام جہاں جہاں بھی ہیں وہ اپنی تمام جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدواران کے حق میں رائے عامہ ہموار کرنے کے لیے جو ہے وہ سرو کریں گے، اور لوگوں کو اس بات کے اوپر جو ہے وہ باور کروائیں گے کہ اس وقت پاکستان جن حالات سے گزر رہا ہے اسے ایک ایسی قیادت کی ضرورت ہے کہ جو معاملات کو اور سب کو اکٹھا لے کے چلے. جس طرح سے 21 اکتوبر کو میاں نواز شریف صاحب نے کہا کہ ان کی 40 سالہ سیاسی زندگی کا نچوڑ یہ ہے. اس وقت میاں نواز شریف پاکستان میں سینئر ترین سیاستدان ہیں. ان کے پاس تجربہ ہے. انہوں نے ملک کو، قوم کو بدلا اس سے پہلے لی. کے اوپر جب پاکستان انتہائی مشکلات میں گرا ہوا تھا، ایک وہ وقت تھا کہ پاکستان کے ایٹمی قوت بننے کے بعد پوری امریکہ بہادر کی لیڈرشپ میں جو ہے وہ پاکستان کا بائیکاٹ کر دیا تھا. بہت کڑا اور مشکل وقت تھا. اس وقت وزیر اعظم تھے. پہلے تو انہوں نے پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا، اور اس کے بعد پھر جو صورتحال درپیش ہوئی دنیا کے بائیکاٹ کی صورت میں اسے بھی فیس کیا اور پاکستان کو اس مشکل سے کامیابی سے نکالا. اسی طرح 2012-13 میں جیسے اب ہیں کہ پاکستان نعوذ باللہ ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے، اس وقت دہشت گردی اور لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے پاکستان انتہائی مشکل حالات سے گزر رہا ہے. قوم نے 2000 کے الیکشن میں پاکستان مسلم لیگ نون اور میاں نواز شریف پر وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے عام انتخابات کے پرامن و شفاف انعقاد کے لیے فول پروف انتظامات کی ہدایت کر دی. 5 اور 6 فروری تک بیلٹ پیپرز اور متعلقہ سامان کی ترسیل یقینی بنانے کا حکم دے دیا. وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی زیر صدارت انتخابات کے انتظامات کا جائزہ لینے سے متعلق خصوصی اجلاس. پولنگ سٹیشنز پر کیمرے 6 فروری سے پہلے نصب کرنے کی ہدایت کر دی. بات کر لیتے ہیں طیب مقبول سے. جی طیب بتائیے گا. جی بالکل، محسن نقوی کی زیر صدارت عام انتخابات کے انتظامات کا جائزہ لینے کے حوالے سے خصوصی اجلاس منعقد ہوا، جس میں چیف سیکرٹری آئی پنجاب صوبائی الیکشن کمیشنر، ایڈیشنل چیف سیکرٹری سمیت فیصل آباد میں صوبہ بھر کے تمام کمشنر اور آر پی اوز ویڈیو لنک کے ذریعے شریک تھے. دیتے ہوئے محسن نقوی نے کہنا تھا کہ 5-6 بیلٹ پیپر کی ترتیب کا عمل بھی 6 فروری سے مکمل کر لیا جائے. اسی کے ساتھ ساتھ وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا یہ بھی کہنا تھا کہ پولنگ اسٹیشن پر بجلی اور انٹرنیٹ کی بلا تعطل کامی کے لیے ضروری انتظامات ہر صورت مکمل کیے گئے. رزلٹ کی شفافیت اور میڈیا کی سہولت کے لیے ہر پولنگ اسٹیشن کے بعد سماج میڈیا والی وال بھی نصب کی جائے. محسن نقوی کا یہ بھی کہنا تھا کہ متعلقہ ادارے ان کو جو بھی
उनका वहां पर काम इलेक्शन के मौका पर होगा, उसको कबल वक्त मुकम्मल करें। इलेक्शन के दिन वाले किस्म की कोई शिकायत नहीं की जाएगी। जी ठीक है तैयब, बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ आपको बताएं, वज़ीर आला पंजाब की मुतवक्किल आमद, PHA ने नए बनने वाले पार्क में हार्टिकल्चर वर्क में तेजी कर दी। बात कर लेते हैं इसी हवाले से वकास अहमद बेग से। जी वकास, बताइएगा। अच्छा, बिल्कुल, एक तरफ वज़ीर आला पंजाब की आमद मुतवक्का है तो दूसरी जानिब जो है पुरानी सब्जी मंडी के मुकाम पर बनने वाले पार्क में तामीराती कामों का सिलसिला जो है वो यकमुश्त जारी है। मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ किस्म का काम जो है वो चल रहा है। अगर हार्टिकल्चर वर्क की बात की जाए जो कि पार्क का सबसे अहम और फिनिशिंग टच है, तो हार्टिकल्चर वर्क जो है वो तकरीबन 45% मुकम्मल कर लिया गया है और ये उम्मीद जाहिर की जा रही है कि आज शाम तक जो है पुरानी सब्जी मंडी के इस पार्क में 60% से ज़ायद हार्टिकल्चर वर्क जो है वो मुकम्मल कर लिया जाएगा। डायरेक्टर हार्टिकल्चर हमारे साथ मौजूद हैं जो कि 125 से ज़ायद लेबर फोर्स के साथ इस वक्त काम कर रहे हैं। ज़ैद साहब, ये बताइएगा कि एक बड़े पैमाने पर लेबर फोर्स है जो काम कर रही है। पार्क जो है वो 43 कनाल से ज़ायद रकबे पर मुहित है। क्या समझते हैं कि आज शाम तक कितना मजीद काम जो है वो मुमकिन हो सकेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने अपना हॉर्टिकल्चर का वर्क 3-4 दिन पहले स्टार्ट कर दिया था। हमारी सीक्वेंस ये थी कि हमने पहले ना बल मुकम्मल करनी है तमाम प्लाट्स के अंदर। हमारे 7 लॉन है इसके अंदर ना, तो वो हमने बल अपनी तकरीबन 4 लॉन के अंदर मुकम्मल कर लिया। उसके बाद एक लॉन हम मुकम्मल कर गया, दूसरा हमारा लॉन नियर टू कम्प्लीशन है। तीसरे लान के अंदर हमने प्लांटेशन स्टार्ट कर दिया। जैसे हमारा दूसरा लान मुकम्मल होगा हम तीसरे में बैठ के घास और पौधे लगाना शुरू कर देंगे। उसके बाद हमारा 5वां प्लाट जो है उसके अंदर भी हमने बल डालना शुरू कर दिया है। हमारा इरादा तो यही है कि आज शाम तक हम अपना जो तकरीबन कोई 60% के करीब काम जो है ना उसको हम फिनिशिंग टच दे दें। अच्छा, बिल्कुल, सिविल वर्क भी साथ साथ जारी है। डांसिंग फाउंटेन का जो है वो भी आखिरी हिस्सा जो है वो उस पर काम चल रहा है। जबकि अगर हार्टिकल्चर वर्क की बात की जाए तो इस वक्त तक 45% हार्टिकल्चर वर्क जो है वो मुकम्मल हो चुका है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि आज शाम तक जो है 60% से ज़ायद हार्टिकल्चर वर्क जो है वो मुकम्मल कर लिया जाएगा। मुख्तलिफ हिस्सों में 7 लॉन जो हैं वो बनाए जाने हैं। ग्रीनरी के हवाले से इस पार्क में 7 में से 2 जो है वो मुकम्मल कंप्लीट हो चुके हैं, जबकि तीसरे और चौथे में शजरकारी का सिलसिला जो है वो जारी है। जी, वज़ीर आला पंजाब की मुतवक्किल आमद है। PHA ने नए पार्क में काम तेज कर दिया। वकास में आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। जंग में उलमा की बड़ी तादाद मौलाना अहमद लुधियानवी की हामी निकली। जमीयत उलमा इस्लाम ने NA 109 और PP 127 से मौलाना मोहम्मद अहमद लुधियानवी की हिमायत का ऐलान कर दिया। तफसीलात अवैस खान से जानते हैं। अवैस, बताइएगा। बिल्कुल, जंग में NA 109 के बाद PP 127 से भी जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से मौलाना अहमद लुधियानवी की हिमायत का ऐलान किया गया है। इस वजह से मौलाना अहमद लुधियानवी मेरे साथ मौजूद भी हैं, उनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, हल्का NA 109 में जो है वो जमीयत की तरफ से हिमायत का ऐलान किया गया, PP 127 से भी हिमायत का ऐलान किया गया। क्या समझते हैं उलमा की बड़ी तादाद जो आपके साथ मौजूद है किस हद तक फ़ायदेमंद होगी सियासी हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमीयत उलमा इस्लाम के मरकज़ी शूरा के मेंबर जनाब शहबाज गुज्जर साहिब और उनके साथ आप देख रहे हैं जमीयत उलमा इस्लाम जंग के सरपरस्त हज़रत मौलाना सैयद मसदूक हुसैन शाह साहिब और ज़िला जंग की जमीयत उलमा इस्लाम के सदर हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद तारिक साहिब, दीगर ज़िम्मेदारान की तरफ से मेरी हिमायत का जो ऐलान हुआ है, आप समझ जाएं कि सिर्फ पोजीशन मजबूत और मुस्तहकम ही नहीं हुई, ये नवीद है इस बात की कि ये सीट हमने जीत ली है इंशाअल्लाह। 8 फरवरी की शाम को इसका रस्मी ऐलान होने वाला है। मैं इस ऐलान के बाद जो मेरा एक ऐलान मेरे नाम के साथ लिख दो, तामीर और तरक्की की अलामत मोहम्मद अहमद लुधियानवी। मैं इस जमात के तमाम ज़िम्मेदारान से मैंने अभी कहा है, मैं एक कमेटी तश्कील दूंगा कामयाबी के बाद, जो इस शहर की मुख्तलिफ जमातों और मुख्तलिफ ज़िम्मेदारों पे मुश्तमिल होगी। उनकी मुशावरत के साथ हम इंशाअल्लाह इस शहर को तरक्की के लिहाज से, तालीम के लिहाज से हम ऐसा बनाएंगे कि किसी दूसरे शहर से ये पीछे नहीं रह सकेगा। बहुत शुक्रिया। यकीनी तौर पर जो तरक्की की अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।
और यहाँ आपको बताएं कि फैसलाबाद में सियासी गहमा गहमी उरूज पर पहुंच गई। कहीं नाश्ते तो कहीं कॉर्नर मीटिंग्स जारी। मेंबर कॉटन पावर लूम्स एसोसिएशन खालिद मुखी की रिहाइशगाह पर लीगी टिकट होल्डर्स के लिए खाने का एहतमाम किया गया। साबिक अपोजिशन लीडर राजा रियाज, राजा दानियाल और महर हामिद रशीद की खुसूसी शिरकत। मजीद तफसीलात जान लेते हैं फसी नकवी से। जी फसी, बताइएगा। इलेक्शन के अंदर चंद ही रोज़ बाकी रह गए हैं और जो गहमा गहमी है इलेक्शन की वो तेज़ हो चुकी है। कहीं नाश्ते हो रहे हैं तो कहीं जो है वो कॉर्नर मीटिंग्स का अहतमाम किया जा रहा है। इस वक्त शेख खालिद मुखी की रहाइशगाह के ऊपर जो है वो साबका अपोजिशन लीडर राजा रियाज की आमद हुई और इसके साथ साथ जो दीगर टिकट होल्डर्स थे वो भी मौजूद थे। इस वक्त हमारे साथ ही मौजूद आई, उनसे बात करते हैं। खालिद साहब, बताइएगा क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, जो मुस्लिम लीग नून ने जो हमारे लीडर राजा रियाज अहमद खां को टिकट दिया है वो हमारे महल्ले की खुशकिस्मती है और हम पहले लोग भी मुस्लिम लीग नून के थे, राजा रियाज साहब की वजह से दूसरी तरफ गए हैं। इंशाल्लाह ताला ये हमारा बेटा है, इनका बेटा, वो हमारे महल्ले का बेटा है और हम राजा साहब पर एहसान नहीं कर रहे हैं। हम अपने बेटे को इंशाल्लाह मियां नवाज शरीफ की क़यादत में वज़ीर आज़म बनाएंगे। इंशाल्लाह ताला मियां नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाएंगे और अपने बेटे राजा दानियाल अहमद खां को इंशाल्लाह एमएलए बनाएंगे। तो जैसा कि आपने सुना कि काफ़ी पुरुमीद दिखाई दे रहे हैं कि जो फसी नकवी अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। जंग के हल्का पीपी 127 में आजाद उम्मीदवार मौलाना मसरूर नवाज की इंतखाबी मुहिम। मोहल्ला सुल्तान और मोहल्ला साहिवालिया में दावत पर कॉर्नर मीटिंग। तफसीलात जानेंगे रमजान से। जी रमजान, बताइएगा। जी बिल्कुल, मौलाना मसरूर नवाज की जानिब से हल्का पीपी 127 में भरपूर मुहिम जो है वो जारी है और इस वक्त मौजूद हैं बस्ती लोले शाह के करीब, जहां पर उन्होंने यहाँ पर मुकामी मुख्तलिफ जो वोटर्स और सपोर्टर्स हैं उनकी दावत पर जो है कॉर्नर मीटिंग से खिताब भी किया। हमारे साथ मौजूद में उनसे बात भी करते हैं। इस इलाके के अपने मसाइल हैं, सीवरेज है, डेवलपमेंट के मसले हैं, सफाई के मसाइल हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इलाका जो है ना वो आप यूँ समझ लें कि शहर का एक पसमानदा इलाका समझा जाता है। यहाँ पर अक्सरियत में ऐसे लोग रहते हैं जो मतलब मजदूर पेशा हैं। यहाँ के हालात ये हैं कि यहाँ सीवरेज के हवाले से, सफाई के हवाले से मुलाजमीन का बिल्कुल आना जाना ही नहीं। आएँ तो अब वो जाहिर सी बात है घर का खाना पकाएं या वो जमादार को पैसे दें कि वो उनकी सफाई करे। तो इंशाल्लाह इनका ये जो मसला है और बहुत दरीना मसला है, इसको हम मुकम्मल तौर पर हल करेंगे। इनके साथ आज हमने जो एक वादा किया है और पहले भी किया है, इंशाल्लाह उसको हम मुकम्मल तौर पर पूरा करेंगे। इनकी बहुत सारी ज़रूरियात हैं और बिलखुसूस मैं ये चाहता हूँ कि हमारे जो इलाके ज़्यादा पसमानदा समझे जाते हैं शहर के होते हुए, उन इलाकों में हम ऐसा सिस्टम भी शुरू करें जिनसे बच्चे एजुकेशन भी हासिल कर सकें। अगर वो लोग खुद नहीं दिलवा सकते तो हम उनको ये सहूलत मुहैया करें। इंशाल्लाह ये सब कुछ यहाँ पर होगा। इसका कहना है कि ना सिर्फ इस पसमानदा इलाके की जो महरूमियाँ हैं उनको दूर किया रमजान जाएगा। मिर्जा अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आम इंतखाबात के हवाले से आपको बताएं कि जंग में भी सियासी गहमा गहमी उरूज पर पहुंच गई। उम्मीदवारों के राब्ते डोर टू डोर मुलाकातें जारी हैं। उम्मीदवार हलकों में वोट की अहमियत और अपना मंशूर पेश करने में मसरूफ है। मजीद तफसीलात जानते हैं वसीम अजीज से। जी वसीम, बताइएगा। सियासी उम्मीदवारों की जानिब से इलेक्शन कैंपेन का सिलसिला जारी है। नून लीग की उम्मीदवार हल्का पीपी 127 से मोहतरम राशिदा याकूब ने महल्ला जो है वो माहिर का विज़िट किया है। वहाँ पर जो है वैंस बिरादरी ने उनकी हिमायत का ऐलान किया है। उनकी पोजीशन जो है वो मुस्तहकम होने लगी है। मेरे साथ मौजूद भी हैं, इनसे बात करते हैं। मैडम साहिबा, वैंस आपकी सपोर्ट का ऐलान करना कैसा देख रही हैं? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया और ये भी बताती चलूं कि ये जो माहिर का इलाका है मेरे साहब हल्के में नहीं था और ये इलाका मेरे में नया शामिल हुआ है। और मैं सबसे पहले तो अपने तमाम वैस बिरादरी और जितनी भी बिरादरियों के लोगों ने आज यहाँ शिरकत की है, वैस बिरादरी का बिलखसूस शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने अपनी बेटी बहन का मान रखा और मेरी सपोर्ट का और अपने भाई शेख याकूब की सपोर्ट का भरपूर हमायत का ऐलान किया। और उसके अलावा मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि जिस तरह मैंने अपने साबका हल्के में दिन रात मेहनत करके तरक्याती काम कराए, अब मेरा अगला ख्वाब है कि इस माहिर का जो दरबार है दुनिया में जाना जाता है, लेकिन इसको मैं अपनी अगर अल्लाह ने मौका दिया तो जो हेरिटेज कल्चर होता है उसमें शामिल करूंगी इंशाल्लाह। यही कहना है कि ना सिर्फ जो है वो जंग की तरक्की के लिए इकदाम किए जाएंगे बल्कि ये पहली दफा शामिल होने वाला कर रहे थे। बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद में मुस्लिम लीग नून को अहम कामयाबी मिल गई।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जिला नायब सदर ताहिर लतीफ कंबो ने नून लीग में शमूलियत इख्तियार कर ली। ताहिर लतीफ कंबो ने हल्का PP 99 में नून लीगी उम्मीदवार शुएब इदरीस की हिमायत का ऐलान कर दिया। इस हवाले से मजीद बात करेंगे उमैर असमत से। उमैर बताइएगा। जी, फैसलाबाद में नून लीग को ये अहम सपोर्ट मिली है कि पुण्यावाला से ताल्लुक रखने वाले ताहिर लतीफ, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फैसलाबाद के जिला नायब सदर थे, उन्होंने पीपल्स पार्टी को खैर बात कहकर मुस्लिम लीग नून में वो शामिल हो गए हैं और उसके साथ साथ 8 फरवरी के जो इंतखाबात हैं उसमें उन्होंने नून लीग की सपोर्ट का ऐलान किया है। NA 95 से आजाद अली तबस्सुम और PP 99 से उन्होंने शुएब इदरीस की हिमायत का ऐलान किया है और उनका ये कहना है कि उनकी तमाम सपोर्ट जो है वो आप उमैर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और ये आपको बताएं, टोबा टेक्सिंग में आम इंतखाबात के मौके पर फराइज सर अंजाम देने वाले प्रिजाइडिंग अफसरान से हल्फ ले लिया क्या? बात कर लेते हैं मुबशिर हसन नकवी से। जी मुबशिर। जी बिल्कुल, आम इंतखाबात 2024 के हवाले से टोबा टेक्सिंग में तैयारियां आखिरी मराहल में दाखिल हो गई हैं। आज ज़िला कौंसिल में जो प्रिजाइडिंग अफसरान थे, पोलिंग का जो अमला था, उनको आज ब्रीफिंग दी गई और उनको आज उनसे हलफ भी लिया गया। टोबा टेक्सिंग के DPO इबादत निसार से बात करते हैं और जानते हैं। सर आप बताइएगा कि आज की इस तकरीब के हवाले से आपने क्या ब्रीफ किया है? जी, अब यहाँ पर जैसे पोलिंग 8 फरवरी को हो रही है तो उसमें जितने प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं उनकी ड्यूटीज़ लगाई जा रही हैं, लग रही हैं, और इसी तरह हमने अपना सिक्योरिटी प्लान जो है वो फाइनल कर लिया है। तो आज इस सिलसिले में जितने यहाँ प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स थे उनसे ओथ लिया गया है, जो कि एक लीगल रिक्वायरमेंट है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। इसके अलावा हमारी जितनी नफरी है उस नफरी के लिए हमने उनकी ब्रीफिंग की है कि उनकी क्या जिम्मेदारियाँ हैं, उन्होंने पोलिंग मटीरियल को कैसे लेकर जाना है, उसकी सेफ ट्रांसपोर्टेशन उनके ज़िम्मे है। फिर जहाँ CCTV कैमरास लग रहे हैं ताकि इलेक्शन के प्रोसेस को अच्छे तरीके से मॉनिटर किया जा सके। इसके अलावा प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को कैसे सपोर्ट करना है ताकि वो जो पोलिंग का प्रोसेस है वो अच्छे तरीके। जी मुबशिर, बहुत शुक्रिया आपका।